Hello everyone, welcome to all in the series of real analysis. आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी. सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए सेट. व्हाट इज सेट? A set is a well defined collection of distinct objects. इसका मतलब वो कलेक्शन जो हमारे वेल डिफाइंड हो. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को लेकर हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे अगर हम कह दे कलेक्शन ऑफ 5 गुड स्टूडेंट इन अ क्लास, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. ये दो अलग अलग लोगों के लिए, दो अलग अलग टीचर्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है. वो सेट नहीं होगा. सेट वो होगा जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जो वेल डिफाइंड हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सम कॉमनली यूज्ड सेट्स, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं. एंड सेट ऑफ रियल नंबर, set of rational number, and set of integers, etc. And suppose कोई एलिमेंट है x, जो x से बिलोंग कर रहा है, जो किसका ऑब्जेक्ट है? x का. तो हम कैसे लिखेंगे? x belongs to x. This symbol is used for belongs to. Fine. So next definition है हमारी subsets. Subsets. So लिखिए if every element of set A is also an element of set B, then A is said to be subset of B. And symbol used for subset, if A is subset of B, then we write A is subset of B. इसका मतलब कोई सेट A है, उसका हर एक एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग कर रहा है, तो A कहलाएगा सबसेट ऑफ B. फाइन. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सुपरसेट. If A is subset of B, that is A is contained in B. We can also say that B contains A, or B is superset of B. B is superset of A. And the symbol used for superset, if B is superset of A, then we write B is superset of A. Fine. Next definition लिखिए proper set. Proper subset. Proper subset क्या होते हैं? If every element of set A is an element of set B,
and there exists an element X which belongs to B such that X is not an element, X is not an element of set A. That is, X does not belongs to set A. Then we say that A is proper subset of B. Subset of B. इसका मतलब अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है बट सेट B का एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे A is a proper subset of B. And symbols used for proper subset, that is, if A is proper subset of B, then we write A is proper subset of B. Fine. For example, set of natural number is proper subset of real number. Set of real number. Next topic है types of sets. So first definition लिखिए null set और empty set. Empty set. So a set which does not consist any element. Any element is called null set. Null set. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम कहेंगे नल सेट और एम्प्टी सेट. सिंबल्स क्या यूज होता है नल सेट के लिए? 5. फाइन. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए फाइनाइट सेट्स. फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? So, if a set consists only finite number of element, then it is called finite sets. Finite set. And if it does not contain finite number of element, then it is called infinite set. So finite set का एक example लिखिए. For example, set A which contains only 3 elements 1, 2 and 3. Set of 3 natural numbers 1, 2 and 3. Fine. So next definition लिखिए infinite set. Infinite set. So a set is said to be infinite which contains infinite numbers of elements. Fine. For example, set of natural number, set of real number, set of integers. Okay.
तो डेफिनेशन लिखिए, सिंगलटन सेट। So a set which consists only one element is called singleton set. नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो फर्स्ट है यूनियन। सो union of two sets A and B is the collection of those elements which belongs to either A or B or both A and B. फाइन। सो A यूनियन B वो सेट होगा जिस सेट में या तो वो एलिमेंट्स आए जो A से बिलोंग कर रहे हैं, या वो एलिमेंट्स आए जो B से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। एंड A यूनियन B इज डिनोटेड एज A union B. So if two sets हैं A and B, then we write A union B equals to X such that X belongs to A or X belongs to B, or X belongs to both A and B. So एक एग्जाम्पल लेते हैं। A equals to the set of natural number from 1 to 5 and B equals to 1, 3, 5, 7 up to 21. It is the set of odd number up to 21 and एक C set ले लेते हैं, C equals to set of natural number. फाइन। तो अब यहाँ A यूनियन B क्या होगा हमारा? सो क्या आएगा A यूनियन B में? डेफिनेशन क्या है कि या तो वो एलिमेंट A से बिलोंग करता हो या B से बिलोंग करता हो, या फिर A से भी और B से, दोनों से बिलोंग करता हो। तो A यूनियन B क्या आएगा? 1, A से भी बिलोंग कर रहा है B से भी, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। 2 आएगा क्योंकि 2 A से बिलोंग कर रहा है। 3 आ जाएगा, 3 A से भी बिलोंग कर रहा है B से भी, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड इसके बाद A में सिर्फ 5 तक एलिमेंट है एंड B में ऑड नंबर्स है फ्रॉम 1 to 20। तो अब हमारे ऑड नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, 7, 9 to 21। तो दिस इज A यूनियन B। ठीक है। तो अब A यूनियन C क्या होगा? A यूनियन C हमारा क्या होगा? देखिए, A में कौन से एलिमेंट है? नेचुरल नंबर्स है, वो नेचुरल नंबर्स है जो 1 से लेके 5 तक है। और नेचुरल नंबर्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स में का सेट क्या है? 1,
सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, देन 2 होता है, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे अप टू इन्फिनेटिव। ध्यान से देखिए, ए सबसेट हो रहा है सी का, ए क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है सी का, विच इज प्रॉपर सबसेट हो रहा है ये, ठीक है। तो अब ए यूनियन सी में क्या आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सारे इसमें है और ये तो सारे आएंगे, पर ये सारे इसमें भी हैं, और इसके जो आगे के एलिमेंट्स है जैसे 6, 7, 8, 9, वो सारे भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन सी पूरा नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है, समझे। और ए हमारा बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी 1, दोनों का कॉमन एलिमेंट है, 2 सी में आ रहा है तो 2 भी आएगा, 1, 2, 3 आ जाएगा, 4, 5। तो इसमें भी हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो बी यूनियन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। सी बी भी तो सबसेट है ना सी का, तो बी यूनियन सी भी क्या हो जाएगा हमारा। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आया कि जो हमारा ए यूनियन बी है, ए इसका सबसेट होगा, इट कैन बी प्रॉपर, और बी भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। इसको हम प्रूव भी करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आए, और वी कैन से ए यूनियन बी इज सुपरसेट ऑफ ए एंड ए यूनियन बी इज सुपरसेट ऑफ बी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, इंटरसेक्शन। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होता है, सो इंटरसेक्शन of two sets A and B is the collection of those elements which belongs to both sets A and B, and it is denoted by, if we say A intersection B, तो हम कैसे लिखेंगे, A intersection B, and in general A intersection B is equals to X belongs X such that, X such that X belongs to A and X belongs to B. तो मतलब क्या है, सो इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स आएंगे जो A से भी बिलोंग करते हो, जो B से भी बिलोंग करते हो, यानी जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है, सिर्फ वो ही आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, फॉर एग्जाम्पल if A equals to A, B, C and B equals to B and C equals to B, C, D, E. So A intersection B क्या होगा, यानी जो A में भी है, जो एलिमेंट्स A से भी बिलोंग कर रहे हैं और जो एलिमेंट B से भी बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए, A से बिलोंग कर रहा है बट B में नहीं है, B में सिर्फ B है, स्मॉल b, ठीक है। और स्मॉल b A से भी बिलोंग कर रहा है, ये रहा, तो A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। अब C A में तो है पर B में नहीं है, तो C बिलोंग नहीं करेगा A इंटरसेक्शन B से, तो A इंटरसेक्शन B में सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा, B, फाइन। एंड A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, A से बिलोंग कर रहा है बट C से बिलोंग नहीं कर, B
यस, बी ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी सी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन में बी आ जाएगा। अब सी देखिए, सी ए से बिलोंग कर रहा है प्लस सी से बिलोंग कर रहा है, तो यह सी आ जाएगा। बट अब डी और ई सी से बिलोंग कर रहा है बट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या, सी में क्या आ जाएंगे, बी और सी। एंड व्हाट अबाउट बी इंटरसेक्शन सी? सो बी इंटरसेक्शन सी, बी में सिर्फ एक एलिमेंट है बी, एंड सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है बी और सी में जो है बी, तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी बी। तो फिर से हमारा एक रिजल्ट निकल के आया, तो क्या होगा, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो सबसेट होगा ए का, इट कैन बी प्रॉपर सबसेट और कैन बी इक्वल, एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का। ये हम एट द एंड ऑफ लेक्चर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन लिखिए हमारी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द collection of those elements which does not belongs to A. Does not belongs to A. एक चीज और ऐड करिए, which belongs to universal set U and does not belongs to A. फाइन। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, X such that X does not belongs to A। इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट, अगर A का कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं तो उसमें वो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो सेट A से बिलोंग ना करते हो, ठीक है। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट होता क्या है, we consider all the sets to be the subset of a given fixed set, जो कि कहा जाता है यूनिवर्सल सेट, फाइन। सो अगर हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, सपोज नेचुरल नंबर ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर, ए इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड ए में वो एलिमेंट आ रहा है जो ऑड है, वो ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया सपोज है, कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। तो हम यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट होंगे जो ए से ना बिलोंग करते हो बट यू से बिलोंग करे। वो कौन से एलिमेंट है, नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट, कौन से एलिमेंट होते हैं जो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, 1 1 तो ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 तो नहीं आएगा, 2 यू से यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है बट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो यस 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ऐसे देखिए तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हमारे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, फाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ सेट्स।
difference of two sets A and B is the collection of those elements which belongs to A but does not belong to B. Fine. It is denoted as A minus B. So, in other words, it can be written as X such that X belongs to A, but X does not belong to B. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज A equals to 1, 2, 3 and B contains element 2, 3, 4. ठीक, हमारा A माइनस B क्या होगा? जो A से बिलोंग कर रहा हो बट B से ना बिलोंग कर रहा हो. सो 1 A से बिलोंग कर रहा है बट 1 B में नहीं है, तो हमारा 1 आ जाएगा. एंड 2 A में भी है, B में भी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज 2 बिलोंग्स टू B. And here, according to definition, the element should belongs to A but does not belongs to B. So 2 is not there and 3 भी नहीं आएगा, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा हमारा A minus B. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है पावर सेट. वन मोर ऑपरेशन इज symmetric difference. Symmetric difference. So, the symmetric difference of two sets A and B is denoted by and it is defined as equals to, so A, difference of A and B union difference of B and D. That means क्या आएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा A और B का? इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स A से बिलोंग कर रहे हो बट B से ना बिलोंग कर रहे हो, या फिर जो B से बिलोंग कर रहे हो या एंड A से ना बिलोंग कर रहे हो. तो हम इन जनरल लिखते हैं X such that X belongs to A and X does not belong to B. या तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और इफ लगा देते हैं यहाँ पे, रहने देते हैं, ठीक है. और if X belongs to B then X does not belongs to A. फाइन, यहाँ पे हम then लिख देते हैं. तो इन जनरल हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज A हम लेते हैं 1, 2, 3 एंड B 1, 2. तो हमारा A क्या होगा?
कौन से एलिमेंट आएंगे? जो अगर ए से बिलोंग कर रहे हो तो बी से ना बिलोंग करे, और अगर बी से बिलोंग कर रहे हैं तो ए से ना बिलोंग करे। सो ऐसा सिर्फ 3 है कि 1 ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी, 2 ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी, बट 3 है जो ए से बिलोंग कर रहा है बट बी से नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। So it is a singleton set. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है पावर सेट। पावर सेट, so the power set of A is denoted by PA and is defined as a set of all the subsets of set A. Or in other words, we can write power set of A equals to X such that X is subset of A. Fine. So हमारा पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब का कलेक्शन होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत छोटा सा। ए एक सेट है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, ये 3 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ए से। हमें ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो बनाने हैं। सबसे पहले ए कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होगा, तो सबसे पहला सबसेट हो गया हमारा ए। एंड पाई empty set which is subset of all the sets. Fine, so it is also a subset of this. And then we take singleton set, so x y भी हमारा सबसेट हो गया, z भी हो गया हमारा सबसेट, सिंगलटन सेट z। एंड और क्या सबसेट होगा हमारा x एंड y and collection of y and z and collection of x and z. Fine. So कितनी सबसेट्स पॉसिबल है ए के? 8. So पावर सेट ऑफ ए में क्या आ जाएगा? A itself, null set, singleton set x, singleton set y, singleton set z and xy, yz, xz. So these are the all possible subsets of A. Fine. So कार्डिनलिटी क्या होगी हमारी पावर सेट ऑफ ए की? देखिए कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो गया? एंड डिनोट करते हैं हम ऐसे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए हमारी क्या है? 8. So it is a general formula that if cardinality of any set P equals to n, then cardinality of power set of A should be 2 raised to the power n. Fine. Next definition लिखिए, Cartesian product. So if A
and B are non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is the set of all ordered pairs A, B with A belongs to A and B belongs to B. इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? वो पेयर होंगे ए बी टाइप के where A belongs to A and small b belongs to set B. Fine. So we can write it as Cartesian product of A and B equals to ordered pairs AB where A belongs to A and B belongs to B. Fine. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. If A equals to 1 and 2 and B equals to 2, 3 and 4, then Cartesian product of A and B should be the ordered pair of A and B, ordered pair of the elements of A and B. So it will be, सबसे पहले 1 लेते हैं, 1 का पेयर बनाते हैं 2, 3 एंड 4 के साथ. सबसे पहले 1 and 2 आ जाएगा, then 1 and 3, then 1 and 4. फाइन. then 2 का पेयर बनाते हैं 2, 3 एंड 4 से. तो 2 आ जाएगा हमारा, 2, 3 आ जाएगा and 2, 4 आ जाएगा. So this is the set, or this is the Cartesian product of A and B. Fine. Now अब हम कुछ proofs कर लेते हैं जो मैंने कहा था at the end of lecture मैं proof करूंगी. तो हमारा पहला proof था A intersection B is subset of A and also A intersection B is subset of B. फाइन. सो अब हम इनको प्रूव करते हैं. देखिए, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ प्रूव करते चले जाना चाहिए. और जो अभी पढ़ ही रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको तो हर एक चीज़ प्रूव करना आना चाहिए. छोटी से छोटी चीज़ तुमको प्रूव करनी है. हम यहाँ कुछ भी ऑब्वियस नहीं है, रियल एनालिसिस में कुछ भी ऑब्वियस नहीं है. यहाँ सब कुछ प्रूव करना होता है. इफ तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नो, यू हैव टू प्रूव इट. इफ यू कैन नॉट प्रूव इट देन इट कैन नॉट बी पॉसिबल. फाइन. सो तुम्हें ये प्रूव करना आना चाहिए. ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा रिजल्ट है जिसको मैं प्रूव कर रही हूँ. नॉर्मली तुम बताने के लिए कि हम छोटी से छोटी चीजें प्रूव कैसे करते हैं. फाइन. सो लेट x belongs to A intersection B, then x belongs to A and x belongs to B. Fine. x belongs to A intersection B, और A intersection B की हमारी डेफिनेशन क्या है? A intersection B equals to x such that x belongs to A and x belongs to B. So अगर हम लिख रहे हैं x belongs to A intersection B, then x should belongs to A and x should belongs to B.
अब नाउ वी गेट x belongs to A intersection B implies that if x belongs to A, then we get x belongs to A. फाइन. सो हमारा क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट जब A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट A से भी बिलोंग कर रहा है. तो हम कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A. हमारी सबसेट की डेफिनेशन यही तो होती है कि if x belongs to A implies x belongs to B, then A is subset of B. तो यहाँ हमने यही तो किया, x हमारा A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट था और हमारा क्या आ गया, x A का एलिमेंट आ गया, तो हमारा A इंटरसेक्शन B किसका सबसेट हो गया, A का. ऐसे ही हम A इंटरसेक्शन B को P का सबसेट प्रूव कर देंगे. इट्स एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन इजीली प्रूव दैट. फाइन. तो हम एक चीज देखिए, कभी भी हमें कोई सेट है B सपोज, वो हमें सबसेट प्रूव करना है C का. सो हम कैसे करेंगे, हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे P का और कुछ ऑपरेशंस लगा के जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हो उसके अकॉर्डिंग हम x को दिखा देंगे C का एलिमेंट. तो हमारा इजीली प्रूव हो जाएगा कि B हमारा सबसेट है C का. फाइन. अब हम कुछ और नए रिजल्ट लिख लेते हैं जो आप खुद प्रूव करना, सिर्फ ये देख के कि हाँ ये तो ऑब्वियस है ऐसे मत छोड़ना, खुद प्रूव करना आप उसको. ठीक है, चाहे कितना ही छोटा प्रूव है, आप एक बार लिखना और प्रूव करके देखना. A यूनियन फाई यानी नल सेट इक्वल्स टू A होता है हमारा. फाइन. A यूनियन A इज ऑलवेज A. A union B equals to B union A. That means it should follow commutative law. Fine. Commutative law. जब भी A ऑपरेशन B ऑपरेशन A के इक्वल हो तो हम इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. It follows commutative law. नेक्स्ट है हमारा A इंटरसेक्शन फाई यानी A इंटरसेक्शन नल सेट हमारा नल सेट ही होता है. यू कैन प्रूव इट इजीली. फाइन. इट इज वेरी इजी टू प्रूव. हर एक रिजल्ट को प्रूव करना खुद से. नेक्स्ट इज A इंटरसेक्शन A इक्वल्स टू A. देन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A. It is again commutative law. Commutative law. Fine. Then A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C. It is associative law. Fine. Then it is same for union. A union B union C equals to A union B union C. देखिए यहाँ इन सबको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दो सेट्स इक्वल दिखाना है. लाइक B हमें C के इक्वल दिखाना है. तो सबसे पहले हम B को C का सबसेट दिखा देंगे. कैसे कि कोई भी एलिमेंट लेंगे हम B का और उसको C का एलिमेंट दिखा देंगे. देन हम सिमिलरली हम ऐसे ही C को B का सबसेट दिखा देंगे. एंड व्हेन B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज सबसेट ऑफ A एम्प्लाइज करेगा B इक्वल्स टू C. तो हम ऐसे ही ये सारे रिजल्ट हम प्रूव करने हैं. ठीक है, आप लोगों को खुद से प्रूव करने की कोशिश करनी है. इजीली, बहुत इजीली हो जाएंगे. ठीक है, लिखना आना चाहिए बेसिकली. प्रूफ हम लिखेंगे कैसे, चाहे छोटे से छोटा प्रूफ हो वो आपको लिखना आना चाहिए. फाइन.
नेक्स्ट रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C. इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फाइन. नेक्स्ट है A intersection A union B intersection C. A union B intersection A union C. इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. फाइन. एक और है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. It is also called as De Morgan law. Fine. So इन सभी को आप एक बार प्रूव करके देखना. So there is a question जिसमें हमें कुछ शो करना है. So क्वेश्चन पढ़ते हैं. If A, B and C are three sets, then show that difference of A and B intersection C is equal to difference of A and B union difference of A and C. And second one is difference of A and B union C is equal to difference of A and B intersection difference of A and C. Fine. So मैं प्रूव करती हूँ. तो पहले हम लेते हैं X कोई एलिमेंट जो डिफरेंस ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन C से बिलोंग करता है. So according to definition, X belongs to A and X does not belongs to B intersection C. So this implies that X belongs to A and X belongs to B intersection C complement. Fine. And this implies that X belongs to A and X belongs to, देखिए यहाँ हमने ये क्यों लिखा कि X बिलोंग नहीं कर रहा है B इंटरसेक्शन C से, then X belongs to B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. सिंपल सी बात है, अगर X A से बिलोंग कर रहा है तो वह X A के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा. एंड इफ X does not belongs to A, this implies that X belongs to A complement. Fine. So हम and now if X belongs to B intersection C complement, B intersection C complement हमारा क्या होता है? हमने पीछे एक डी मॉर्गन लॉ पढ़ी है रिजल्ट्स में. B complement union C complement. फाइन. तो हम क्या लिखेंगे? X belongs to B complement union C complement. This implies that X belongs to A and X belongs to B complement or X belongs to C complement. Fine. So हम आप क्या लिख सकते हैं? X belongs to A and X belongs to B complement or X belongs to A and X belongs to C complement. Fine.
तो हमारा क्या आ जाएगा, सी x belongs to A and x belongs to B complement. That means x belongs to A and x does not belongs to B. Sorry. Or x belongs to A and x does not belongs to C. Fine. तो हमारा क्या आ गया, x belongs to difference of A and B. So it is definition, according to definition of difference of A and B, if x belongs to A minus B, then x should belongs to A, but x should not belongs to B. तो यहाँ यही तो लिखा है, तो इसी को तो हमने लिखा है कि x belongs to A minus B और x belongs to A minus C. फाइन. तो इसको हम क्या लिख लेंगे, x belongs to A minus B union A minus C. तो या तो x A minus B से बिलोंग कर रहा है या वो A minus C से बिलोंग कर रहा है. फाइन. सो हम इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा A minus B यूनियन A minus C से. अब तक हमारा क्या प्रूफ हुआ, A minus B intersection C equals to difference of is subset of A union difference of A and C. फाइन. अब हमें दूसरी साइड प्रूफ करनी है. अब हमें A माइनस बी यूनियन A माइनस C को हमें डिफरेंस ऑफ A एंड B यूनियन C का सबसेट प्रूफ करना है. फाइन. तो जैसे हमने ये चीज प्रूफ की वैसे ही हम सेम उल्टा प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप इसको प्रूफ करें. ठीक है, तो जैसे हमने ये प्रूफ किया वैसे ही हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे. सेम ऐसे ही करना है और ऐसे ही हम इसका बी पार्ट प्रूफ कर देंगे. सो ये बी पार्ट आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इसको खुद से प्रूफ करना. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सेट S equals to X such that X is a real number. X belongs to R. That means X is a real number. And x square plus 1 equals to 0 is empty set. So हमें इस सेट S को हमें empty प्रूफ करना है. चलिए सॉल्व करते हैं इसे. So x belongs to S. This implies that x एक रियल नंबर है, x belongs to R and x square plus 1 equals to 0. फाइन. हम अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो इफ x square plus 1 equals to 0 then x square equals to -1. अब देखो, क्या रियल नंबर में ऐसा होता है कि कोई भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर हम करेंगे और वो नेगेटिव आए? ऐसा नहीं होता. ऐसा कॉम्प्लेक्स में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है. ऐसा रियल नंबर में कहीं नहीं होता. रियल नंबर क्या होता है, 0, 1, 0.5, 0.2, √2, √3, कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा. कुछ भी √2 का सपोज √2 है हमारे पास, हम उसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास 2 आएगा. कोई नेगेटिव नंबर है, कोई भी है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे हम, a स्क्वायर आ जाएगा. सो हमारे पास जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा. सो दिस implies that x does not belongs to R. और यहाँ देखिए हमें क्या दिया गया था कि x R से बिलोंग कर रहा है और साथ में इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है. बट या तो वो R से बिलोंग करेगा, यानी कि या तो वो रियल नंबर होगा या फिर वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. फाइन. सो हमारा क्या हो गया, इस सेट में कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे, कोई से भी नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ये 5 होगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, या तो अगर वो रियल नंबर है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ये रियल नंबर नहीं है. सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे.
एक्स स्क्वायर अगर -1 है, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, आयोटा एक टर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसको हम -1 बोलते हैं, जिसके स्क्वायर को हम -1 कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा जो है हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सो आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर है। सो ऐसा कोई भी हमें एलिमेंट नहीं मिला जो रियल नंबर हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इसलिए हमारा जो सेट है एस, वो हमारा नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट एस से बिलोंग कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। फाइन, सो थैंक यू।